Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to read the next part of this story um, in the Kingdom of Fools, chapter number 4 from Moments book of NCRT class 9th. So now, can we have a brief, of the first part of the video? We have read till 3 pages in first part of the video, and we have come to know about this story. Like in first 3 pages, in the Kingdom of Fools, one guru and disciple went there, and then after they saw everything was quite different from the common one. People used to work in night, and people used to sleep in day. Even all the businesses and trades were done in the evening time, and even the animals were trained to sleep in the morning. However, when it was realized by the guru, he suggested his disciple to leave the place as soon as possible, because they never know that what will be happening to them next moment. Well, after the suggestion, even disciple did not agree to go with his guru, and in between an incident took place where a burglar was killed when he was thieving the money from a merchant house. And then all the matter went into the court of king, and later on everyone was called. Well, now we are going to go through the page number 4, 5 and 6. Let us see what is happening in this story. Well, it was an allegation was put against an old woman, which is now old. Earlier she was young. Just because of her, the bricklayer was unable to focus on his work, and that's why the wall was made so weak. जो दीवार है वो कमज़ोर बनाया गया था उस वुमन की वजह से. Now let us start what she says in her. अपने बचाव में वो और बूढ़ी औरत क्या बोलती है उसके बारे में. It has fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. He'll have to be punished. राजा बोलता है कि यह जो दीवार है वो एक गरीब चोर के ऊपर गिर गया, और उसके वजह से उस चोर की मृत्यु हो गई है. तुमने एक निर्दोष आदमी को मारा है, इसके लिए आपको सज़ा मिलेगी. She thought for a minute and said, "My lord, wait. I know why I was walking up and down that street." फिर वो औरत बोलती है, बूढ़ी औरत बोलती है कि महाराज एक मिनट रुक जाइए, मुझे अभी याद आ रहा है कि मैं उस दिन क्यों बार बार उस गली से, उस रास्ते से आ जा रही थी. I had given some gold to goldsmith to make some jewelry for me. मैंने एक सुनार को जो है कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए दिया था. He was a lazy scoundrel. वह एक बिल्कुल निकम्मा बदमाश है. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then and so on all day. और उसने बहुत सारे बहाने बनाए उस दिन, और उसने मुझे बार बार बोला अभी दूंगा, उसके बाद दूंगा, अभी, ऐसे करके उसने जो है दिन भर मुझे बार बार बुलाता रहा. He made me walk and up and down to his house a dozen time. इस तरीके से उसने मुझे a dozen time अपने घर पे बुलाया. That was when this bricklayer saw me. It was not my fault, my lord. It is the damned goldsmith fault. और उसकी वजह से जो है ब्रिकलेयर ने मुझे देखा. यह मेरी गलती नहीं है महाराज, ये उस गोल्ड स्मिथ की, उस बदमाश गोल्ड स्मिथ की गलती है. Poor thing. She is absolutely right, thought the king, weighing the evidence. राजा जो है अब सोचता है कि सच में ऐसा हो सकता है, वो सही बोल रही है.
और उसके बाद उसने जो एविडेंस है, सबूत है, उसको उसने अपने दिमाग में वे करना शुरू किया। मतलब उसको वे करने के बाद वो डिसाइड करता है वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, और उसको ऐसा बोलता है राजा कि अब हमें रियल कल्प्रिट जो है अंत में मिल चुका है। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग। एट वंस द किंग्स bailiffs searched for the goldsmith, who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. Now जब राजा ये डिसाइड करता है कि उस गोल्ड स्मिथ को कल्प्रिट मान लिया गया है और उसको बुलाया गया है, तो वो उस राजा बोलता है कि उसको पकड़ के लाओ कहीं, जहाँ कहीं भी छिपा होगा। और उसके बाद जो द किंग्स bailiffs here is a person who is being assigned some authority to write the उसके खिलाफ़ में जो आरोप लगे हैं उसको लिखा जाता है, और उसकी ड्यूटी होती है कि वो उसको जाके समन करे, उसको बुलाए। तो bailiff जो है उसको गोल्ड स्मिथ को ढूंढने जाता है, और उसको जब ढूंढने जाता है तो वो देखता है कि वो अपने दुकान में एक कॉर्नर में छिपा हुआ है। और जब उसको दरबार में लाया जाता है तो उसके ऊपर जो एक्यूजेशन है, आरोप है, उसको बताया जाता है। बट जो गोल्ड स्मिथ है उसके पास उसकी एक अपनी कहानी है राजा को बताने के लिए। ही सेज, माय लॉर्ड, ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ। इट इज़ ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर. I gave her excuses because I could not finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order. Now in this para, गोल्डस्मिथ बोलता है, महाराज यह सही है कि मैंने उस लेडी को, उस डांसर को जो है मैंने अपने घर पे कई बार बुलाया, लेकिन मैंने इस कारण से बुलाया क्योंकि मुझे उसके ऑर्डर के पहले एक अमीर व्यापारी का ऑर्डर मुझे मिल चुका था, और जिसके घर में शादी थी। दे हैड अ वेडिंग एंड दे वुड नॉट वेट, और शादी की वजह से वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। तो उनको इस डांसर से पहले गहने बना करके देने थे, जिस कारण से मैंने बार बार बहाने करके उस लेडी को आने के लिए बोला। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर। और आपको तो मालूम ही है कि अमीर आदमी बिल्कुल भी धैर्य नहीं रखते हैं। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him? Now राजा जो है उससे पूछता है कि आप उस रिच मर्चेंट का नाम बताओ जिसने आपको इस गरीब औरत के ज्वेलरी को बनाने से पहले अपने ज्वेलर बनाने को बोला, और जिसकी वजह से ये औरत जो है बार बार उस गली से आई गई, जिसके कारण ब्रिक लेयर का ध्यान जो है डिस्ट्रैक्ट हुआ। तो उसका नाम जो है वो जानना चाह रहा था राजा, उसका नाम पूछ रहा था। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन ओरिजिनल ओनर ऑफ the house whose wall had fallen. Now justice had come full circle, thought the king back to the merchant. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It was not me but my father who ordered the jewelry. He is dead, I am innocent." Now in this para, when a goldsmith took the merchant name, और उस व्यापारी का नाम लेता है, तो यह पता चलता है कि वह उसी व्यापारी, यह नाम जो है उसी व्यापारी का है जिसके घर की दीवार जो है उस चोर के ऊपर गिरा है और जिसके वजह से मृत्यु हुआ है। अब राजा के समझ में आता है कि न्याय जो है बहुत नज़दीक है, अब वो न्याय करने वाला है, वो न्याय देने वाला है। एंड उस व्यापारी को जो है दोबारा से समन किया जाता है, उसको कोर्ट में जो है रूडली बिल्कुल घसीट के लाया जाता है। बट जो व्यापारी है, जो मर्चेंट है, वो ही सेज, वो आता है और रोते हुए बोलता है कि महाराज ये जो घर बना, ये जो गहने का जो ऑर्डर दिया गया था वो मेरा नहीं दिया गया था, मेरे फादर के थ्रू दिया गया था, और चूँकि मेरे फादर अब मर चुके हैं तो मैं निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसाइसिवली
It's true your father is the true murderer, he is dead, but somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. फिर राजा बोलता है, राजा जो है अपने मिनिस्टर से कंसल्ट करता है और उनसे सलाह लेता है, और वो जो है उसके द्वारा याचना को, उसके द्वारा मर्सी पिटिशन को खारिज करते हुए बोलता है कि यह सही है कि तुम्हारे पिता जो है मर्डरर हैं, लेकिन चूँकि वह मर चुके हैं तो किसी न किसी को सज़ा मिलनी चाहिए उनके जगह पे, और चूँकि आप उनकी सारी संपत्ति आपको मिल चुकी है। इनहेरिटेड मीन्स संपत्ति मिलना, तो इन्हें आपको उनकी सारी संपत्ति मिल चुकी है, आपके क्रिमिनल फादर की सारी संपत्ति आपकी है। उनके जो बुरे कर्म हैं, हिज रिचेज, लाइक उनके जो कर्म हैं और उनके जो पाप हैं वो सब आपको मिलेगा। अगर आप अच्छे में भागीदार हो तो बुरे में भी आपको भागीदार होना होगा। और मुझे पहले भी ऐसा लगा था जब मैंने पहली बार तुम्हारे ऊपर देखा, और उसी वक्त मुझे यह समझ में आ गया था कि यू आर द कल्प्रिट। तो इस हॉरिबल क्राइम के पीछे आपका हाथ है और आपको सज़ा मिलनी चाहिए, आपको मृत्यु मिलना चाहिए। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टिक टू बी मेड रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। As the servants sharpened the stick and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. Now राजा जो है आदेश देता है। Stake here is a stake is a weapon which आप बोल सकते हैं कि एक लकड़ी को नुकीला काट के बनाया जाता और उसको पियर्स किया जाता, घुसेड़ा जाता व्यक्ति के शरीर में, जिसके बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो एक सर्वेंट को बोला गया कि एक स्टिक तैयार किया जाए। तो स्टिक तैयार हो गया उसके शरीर में पियर्स करने के लिए, उस क्रिमिनल के, मर्चेंट के शरीर में। तो ऐसा महसूस हुआ एक मिनिस्टर को, जैसे वो जो रिच मर्चेंट है वो काफ़ी पतला है और उसमें ये जो है स्टेक आसानी से, मतलब सही तरीके से प्रॉपरली मतलब नहीं जाएगा, और उसका एग्जीक्यूशन जो है सही तरीके से नहीं हो पाएगा, उसका जो मृत्यु है सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो मिनिस्टर जो है अपील करता है राजा से कि महाराज, एक साधारण सी बात है कि ये काफ़ी दुबला पतला इंसान है और इसको इस स्टेक से नहीं मारा जा सकता। इस बात से राजा काफ़ी परेशान हो जाता है। नाउ वो पूछता है, व्हाट शैल वी डू, हमें क्या करना चाहिए। ही सेड, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. The servants were immediately sent all over the town looking for men who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. तो फिर उसके बाद यह निर्णय होता है, यह डिसाइड होता है कि इस दुबले पतले इंसान की जगह पे किसी एक मोटे तगड़े हट्टे कट्टे इंसान को लाया जाए और उसको सज़ा दी जाए। लोग सैनिकों को बाहर भेजा जाता है ऐसे इंसान को ढूंढ के लाने के लिए। तब उन सैनिकों की नज़र जो है उस डिसाइपल, उस शिष्य के ऊपर पड़ती है जो अभी काफ़ी हट्टा कट्टा हो गया है, क्योंकि उसने बहुत सारे बनानाज, राइस, व्हीट एंड घी बहुत चीप दामों में खाए थे, सस्ते दामों में खाए थे। तो नाउ इट वॉज द टाइम फॉर द एग्जीक्यूशन। What I have done wrong? What have I done wrong? I'm innocent. I'm a sannyasi, he cried. That may be true, but it is the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said, and carried him to the place of execution. उस शिष्य ने बोला, मैंने क्या गलत किया, मैं तो निर्दोष हूँ, मैं सन्यासी हूँ। वो चिल्लाने लगा। तो सैनिक बोले, यह सत्य है, लेकिन यह रॉयल डिक्री है, डिक्री मतलब न्याय, और ये राजा के द्वारा किया गया न्याय है, तो आपको मानना होगा। और उसको जो है वो लोग पकड़ के ले जाते हैं। उसको बताया जाता है कि स्टेक से उसको, स्टेक जो है उसके लायक है, क्योंकि फैट जो व्यक्ति है उसी के अंदर में स्टेक उसको डाल के मारा जा सकता है। और उसको पकड़ के ले जाते हैं जहाँ पे उसको सज़ा देनी होती है। He remembered his wise guru words, this is a city of fools, you don't know what they will do next.
While he was waiting for death, he prayed to his Guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. The Guru saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far, and he could see the future, and he could see the present and the past. He arrived at once to save his disciple, who had got himself into such a scrape through love of food. नाउ जब उसको सज़ा मिल रही होती है, मृत्यु की सज़ा मिल रही होती है, तो वो अपने गुरु को याद करता है और उसको उनके शब्द जो है, उनके वाक्य बिल्कुल याद है कि यह मूर्खों का शहर है और तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि वो तुम्हारे साथ अगली मीटिंग में क्या करने वाले हैं. नाउ ही वॉज वेटिंग फॉर द डेथ. वो अपनी मृत्यु का इंतज़ार कर रहा था और साथ में प्रार्थना कर रहा था, अपने दिल ही दिल में अपने गुरु को याद कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि अगर वो उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं और कहीं भी हैं तो वहाँ पे आ जाए. गुरु जो है उनका काफ़ी उनके पास मैजिक पावर था. वो सब कुछ देख सकते थे. वो फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब देख सकते थे और उसके प्रेयर को सुन करके, डिसाइपल के प्रेयर को सुन करके वो वहाँ पे प्रकट होते हैं. और उनको मालूम था कि ये जस्ट बिकॉज ऑफ स्क्रैप, वो इस जंजाल में जो है फूड, लव ऑफ फूड की वजह से पड़ा है. भोजन से उसको काफ़ी प्यार था, इसकी वजह से वो इस जंजाल में फंस गया है. As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. Then he went to the king and addressed him, O wisest of kings, who is greater, the Guru or the disciple? Of course, the Guru, no doubt about it. Why do you ask? Then put me to the stake first, put my disciple to death after me. In this para, जैसे ही गुरु वहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले अपने शिष्य को स्कॉल्ड करते हैं, थोड़ा खरा खोटा सुनाते हैं, उसको खरी खोटी सुनाते हैं और उसको बोलते हैं, उसके कान में कुछ बोलते हैं. देन वो गुरु जो है किंग के पास जाते हैं और बोलते हैं, ओ राजाओं में महान बुद्धिमान, आप काफ़ी महान हैं, किंतु मेरा एक प्रश्न है. राजा बोलता है, अपना प्रश्न पूछिए. तो गुरु बोलता है कि यह बताइए, गुरु और डिसाइपल में, शिष्य और गुरु और शिष्य में महान कौन होता है? तो राजा बोलता है, गुरु, इसमें कोई संदेह भी नहीं है. नाउ राजा पूछते हैं, व्हाई डू यू आस्क, आपने यह मेरे से क्यों पूछा? तो गुरु बोलते हैं, तो इस हिसाब से मैं महान हूँ, तो पहला मृत्यु जो है मेरा होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ डिसाइपल, मेरे शिष्य की जगह पे पहली मृत्यु मेरी होनी चाहिए. सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज द 3 pages in part 2 of the video I have taught. We will continue this story in the next part of the video. Till then, stay tuned with the channel and learn more at your home. I'll give you the assignment as well for this chapter. Now I'm just bidding a goodbye to you. Till then, bye, take care and have a nice day. Thank you.